watching Reality Check. As the virus worsens, so at times does it appear the political response, with increasingly governments at the center and the state hitting out at any questions that has been raised over the crisis that the virus is engendering. The most startling claim came from Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who claimed that there is virtually no oxygen shortage in his state and that those who are putting this information out are spreading false rumors. Let's listen. जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। So na ke barabar, says the Uttar Pradesh Chief Minister, virtually next to no oxygen crisis in Uttar Pradesh. What's the ground reality? Well, my colleague Saurabh Shukla traveled to Meerut in western Uttar Pradesh, where he found hospitals where doctors and administrators are openly saying that patients have died because of a shortage of oxygen. Let's watch. I have joined by Dr. Subhash Yadav. He's MS Anand Hospital. Yesterday in his hospital, 3 patients died due to lack of oxygen. Sir, what happened yesterday? Why weren't you getting regular supply? In this second wave, the situation is very, very bad. I will say we have faced the first wave and I tell you, not a single patient died in our COVID facilities in the first wave. We managed so well. But this time when we don't have oxygen, which is a main weapon in our hand, so how will we fight? How will it save the patient? For last 2 days, there was acute shortage of oxygen in our hospital. We were allotted 400 cylinders in a day, but we were getting just hardly 90 cylinders, and that too 5 at a time, 10 at a time. So at the same time, we were left with 4 cylinders, and there were in the queue loads of all the hospitals ambulances were in the queue for oxygen. So nobody was getting filling. So every hospital faced shortage of oxygen yesterday for 2 hours. And I would say that I lost 3 patients yesterday, and all the hospital have lost 3-5 patients. Due to lack of oxygen. Due to lack of oxygen. Number of patients who require oxygen this time is very high. Around 70% patients who are admitted in the hospital, they require high flow oxygen. So as of now, sir, you are not taking new patients who need more oxygen supply? We are not able to take those patients who require load of high flow of oxygen, like with 75% saturation. How can we give them oxygen? Right now we are taking patients who have got oxygen around 80 to 90%, so that we can give a little bit of oxygen to every patient and we can save them, like 2 liter, 3 liter, 4 liter. We are continuously doing rationing of oxygen to each and every patient. Do you think that this problem is going to go away? No. This is going to peak between 11 May to 15 May. It will peak. When it will peak, we are having 3 times of patient now. I think we will have 4 times of patient now at that time. We barely need oxygen. Otherwise, we cannot save patients. Lot of patients will die. डॉक्टर गुप्ता, आपके यहाँ कल कितने मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक बड़ा फैक्टर है। और मेरा कल 3 से 4 पेशेंट कल सुबह से लेके, कल अर्ली मॉर्निंग से लेके, बल्कि पोस्ट लर्निंग कल अर्ली मॉर्निंग से लेके और रात तक 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं। उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाते। मैं ये तो नहीं कहता कि वो ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, लेकिन ये फैक्टर जरूर है। एक फैक्टर जरूर है कि ऑक्सीजन की जो जितना प्रेशर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। सर, आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन की कमी भी है इस बार, और दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए वो ये जो अभी आया है कोरोना का, जो इतना बड़ा हम लोग झेल रहे हैं भयावह स्थिति, उसमें जितनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, एक तो वो नहीं है हमारे पास।
नंबर 2, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज नॉट टारगेट ओरिएंटेड, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। टारगेट सर, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आपको कितना रिक्वायरमेंट है रोज का और कितना मिल पा रहा है? जितना हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसका हमको 55%, 55%, 60% मिल पा रहा है। जिन्होंने अपने मरीजों के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम किया है, जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये मेरठ का KMC हॉस्पिटल है, यहाँ का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक है। सर, आपका कौन एडमिट है अंदर? सर, मेरे जीजा एडमिट है यहाँ पर, और पिछले 2 दिन से मैं जो है ना जद्दोजहद कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। योगी जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मुझे तो लगता नहीं कहीं ऑक्सीजन है। कैसे इंतजाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल क्या कर रहा है? हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है? हॉस्पिटल ने मना कर दिया है कि अपना पेशेंट ले जाइए, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी योगी जी आके देखें ना यहाँ पे। सरकार कह रही है ना बेड है, बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बेड का क्या करेंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी। मोहम्मद इकबाल है। आपका कोई एडमिट है अंदर? हाँ जी, मेरी माँ एडमिट है। माँ को एडमिट है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उनको? ऑक्सीजन करनाल से ला रहे हैं जी। करनाल से ला रहे हैं? 25,000 रुपए का सिलेंडर लेके आ रहे हैं? 25,000 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं करनाल से। करनाल से। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की। सरकार आके यहाँ देखेगी तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ की वो हो रही है। 2:30 बजे से जा रहे थे, 2:30 बजे से जा रहे थे, जब ये लेकर आए। गंगानगर से ऑक्सीजन मैं लेकर हूँ। गंगानगर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आपके कोई मरीज? मेरा खुदा भाई है, मेरा सगा भाई है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे जमुनानगर से मैं खुद लेकर आया 5 सिलेंडर। कैसे रिफिल दे रहे हैं खाली, आज वो भी नहीं दे रहे लोग। आज रिफिल खाली भी नहीं दे रहे। भरी तो क्या देंगे ये लोग, लेकिन खाली नहीं दे रहे। अक्षय, आपके कौन कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे मदर और फादर दोनों एडमिट है, दोनों कोविड पॉजिटिव है, और मतलब 3 दिन हो गया उनको एडमिट हुए। फर्स्ट डे ऑक्सीजन मिली थी यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, अच्छी ऑक्सीजन मिली थी, लेकिन 2 दिन बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। और हमें 2 सिलेंडर दिए गए हैं, उन्होंने दिए, खाली सिलेंडर दिए हॉस्पिटल ने हमें कि आप जाके रिफिल करा लाओ, क्योंकि इन्होंने हाथ खड़े कर, कहीं से भी करा लो, कहीं से भी करा लाओ। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफिस ऑफ मेरठ टू नो द वर्जन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन on our investigation, but it did not come over the phone. We reached out to Chief Medical Officer of Meerut. He said that DM will comment on that, but he did not meet us. One thing is very clear, that statement of UP Chief Minister Yogi Adityanath that there is no shortage of oxygen in whole Uttar Pradesh has fallen flat, because several patients died due to lack of oxygen in Meerut yesterday. In Meerut, Shashikant Jha, Saurabh Shukla, Karendi TV. All right, so deaths in Meerut being reported because of a shortage of oxygen, even as Yogi Adityanath, Chief Minister, claims there is no oxygen shortage. We have Sunil Bharala of the BJP is with us, Juhi Singh of the Samajwadi Party is with us, Dr. Anurag Mehrotra, Chairman and Chief Cardiologist, Sidh Hospital in Moradabad, which is also in Uttar Pradesh with us. And also on the phone line, we're joined by BJP Member of Parliament Kaushal Kishore from Uttar Pradesh. कौशल किशोर जी, ये बताइए कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना के बराबर है। अभी हमारे रिपोर्ट ने दिखाया कि मेरठ में लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के वजह से, ऐसे वहां के खुद अस्पताल के लोग बता रहे हैं। आपने खुद एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है, तो हकीकत क्या है यूपी की? ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में है, जिनको बहुत से लोग घरों में क्वारंटाइन हैं जी, आइसोलेट हैं, और वो जरूरी नहीं कि कोविड के भी पेशेंट हैं, और जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। वो लाइन में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और फिलिंग सेंटर पे मालूम हुआ कि उनको बहुत मुश्किल में मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अभी लखनऊ हॉस्पिटल ने एक नोटिस लगा दिया कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, इसलिए मरीज अपना इंतजाम करें रेफरेंस हॉस्पिटल। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरी खुद 2 फिलिंग स्टेशन पे बात हुई ऑक्सीजन वाले से कई दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रोक लगा रखी है। मैंने बहुत पूछा
बड़ा मुश्किल उन्होंने बताया, ड्रग इंस्पेक्टर ने रोक लगा रखी किसी और सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में नहीं। कौशल किशोर जी, जरूरत प्राइवेट, ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। कौशल किशोर जी, एक सेकेंड, आप जो बता रहे हैं बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन एक तरह से जो आप बता रहे हैं ये जमीनी हकीकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे भी लगता कि कमी नहीं है, क्योंकि फिलिंग स्टेशन पे उन लोगों को नहीं मिल पा रही है ऑक्सीजन। जहाँ पे गैस मिलती है वहां पर नहीं मिल पा रही है, और जबकि और गाड़ियां जाती हैं वो भर करके आती हैं, तो जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, जिनके घरों में लोग आइसोलेट हैं, कम से कम उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। और अगर घरों में लोगों की बात नहीं है कौशल किशोर जी, सरकारी आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिर्फ घरों के लोगों की बात नहीं है। अभी हमने मेरठ के सिर्फ 2 अस्पतालों का बताया, 2 अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। लोग ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से अस्पतालों में मर चुके हैं। तो आप कैसे बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है? ये तो गजब का स्टेटमेंट आ रहा है बार बार। एनीवे, आई थिंक लाइन कट गया है कौशल किशोर जी से। लेट मी आस्क भराला जी। भराला जी, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, और हमने खुद मेरठ की अभी बयानें सुनी है, और भी मैं आपको बहुत बयानें और तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन पहले बताएं कि क्या ऐसा स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं योगी जी? देखिए, ऐसा है कि जहां ऑक्सीजन की कमी की बात है जी, ऑक्सीजन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कमी नहीं है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन का जो आज वर्तमान में जिस प्रकार से वो प्राप्त करानी है, यानी कि ऑक्सीजन, मैं मेरठ की बात करता हूं तो जैसे 35 मैट्रिक टन आज खपत है, लेकिन वहां प्राप्त हो पा रही है 10 मैट्रिक टन, ये तो डबल हो गया। पहले 10 मैट्रिक टन की खपत थी तो अब 35 की हो गई है। तो जिस आधार पर मेरठ को जोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन की कमी का जो ये हो रहा है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अस्पतालों में जो हो रही है जी, उसकी जो घरों में जो पेशेंट है वहां वो गैस जा रही है, या फिर अदर जैसे लोग अपने अपने सिलेंडर कुछ ये भराला जी दूसरा जो है कि पर्याप्त में पूरी बात श्रीनिवास जी आप देखिए ऐसा है को पूछना चाहते हैं जी। देखिए बहुत गंभीर हो चुका है, अब इसको घूम फिरा के जस्टिफाई करने का अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं रहा है। देखिए योगी जी का बयान हम सब ने सुना, उन्होंने कहा कि यहां तो ना के बराबर है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। सत्य है ये बात बिल्कुल। दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश से जा रही है, इधर से नोएडा से, गाजियाबाद से, दाएं बाएं से। तो हमारा कहना यह है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो अधिकारी उस पर कंट्रोल करें और बात पे ले आए, उसका आवंटन करें जी। वो फैक्ट्रीज अगर यूपी और आगरा या जहां पे भी हैं, फैक्ट्रीज अगर वहां है तो जहां से सप्लाईज जहां ऑर्डर प्लेस किए वहीं तो जाएंगी। लेकिन योगी जी का बयान तो साफ साफ गलत निकल के आ रहा है ना। मेरठ में लोग मर रहे हैं, आगरा में लोगों को अस्पतालों से निकाले जा रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, मथुरा में एम्बुलेंस ऑपरेटर रोड पे स्ट्राइक पे हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सिलेंडरें नहीं भरी जा रही हैं। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले गाजियाबाद के कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। गाजियाबाद का, इफ यू कैन पुट दोस विजुअल्स। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की इतनी बुरी हालत है that people are on the road, they are driving to some NGOs, jahan some NGOs been set up, Khalsa and Help International, there in the cars and on the road they're being given oxygen. That is the state of affairs in Uttar Pradesh, contrary to, you can see those pictures on the screen of Ghaziabad, contrary to what the Chief Minister is claiming. Now, let me just go to Dr. Mehrotra, who's been waiting patiently. Apologies, Dr. Mehrotra. Now, give us, you are heading this hospital in Moradabad. I assume that this is also COVID patients must be being treated there. What is the reality there? What is the situation with oxygen? Good evening. I can talk only as a healthcare professional. Yes, yes.
Only as a healthcare. This is unprecedented times. We have so large number of patients who are coming to the hospital requiring oxygen. So it is natural that there will be stress on the demand. There's no doubt about that. Healthcare is not a priority sector with us. So there was no proper audit of the hospitals, how much amount of oxygen we may require in the time of emergency. So that is one thing. Other thing how much is the oxygen shortage you're facing currently? What sort of problems are you facing? It is there because the number of patients is so large, and so we run a critical care facility, and we have 70 ICU care beds, and we have many ventilators with us. So most of the patients are requiring oxygen in a very high amount, and even many of them are ventilators, non-invasive modes, and high-power mask type of thing, which require large amount of oxygen. So shortage is there. There's no doubt about that. But at the same time, we must understand what we are dealing with. This is the thing which has never been seen before. I haven't seen this type of thing in my life, and most of it will not see again. We Situation hope. is unprecedented, but we have to make do with the things we have. I agree that this is unprecedented. It's only when you have people in positions of power claiming that everything is hunky-dory, that is the problem. But Javed Ansari, I'll come to you in a second. Let me just go to Juhi Singh first. Juhi Singh, what do you make of what the BJP is saying that, look, there's no real shortage. It's just the way the oxygen is there. It's just not being managed. It's not reaching everybody. So the BJP is lying. I think Mr. Bharala has also written a letter to the Chief Minister. Mr. Kaushal Kishore, of course, had. There is a crisis, an unprecedented crisis, because we had time to prepare for 1.5 years, and we made no roadmap as to how we are going to transport this oxygen, what are the cryogenic containers we need. So the Chief Minister it has failed, and he has to take a reality check. It's not just Lucknow and Noida. It is smaller cities, places like Bahraich, no oxygen is available. Gorakhpur, Agra, people have died. Places like Balia, where people are not getting admitted. And when you make ICU beds, you provide for them, then oxygen is supposed to be there as a backup. So just to say that it is times, of course, we've never seen a pandemic of this scale, but we had enough time to prepare. That is why we went into the lockdown. I thought that we would strengthen the infrastructure. Bharala ji, आपने भी लेटर लिखा है सर? आपने भी चिट्ठी लिखी थी ऑक्सीजन को लेकर या प्रॉब्लम? हाँ, पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने उसको एक्शन में लिया है। और नहीं, क्या लिखा था आपने? जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी बहुत बड़ी मात्रा में, और उसको रोकने के लिए और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कि आवश्यकता है, मेरठ के नागरिकों को उनकी मांग है, तो उसमें अधिकारियों को सख्ती से लिया जाए। ठीक है, उस पे आपने लेटर लिखा था। लेकिन अभी आपने खुद सुना इसी शो पर एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो मुरादाबाद से, वो खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो बार बार यही सवाल उठता है कि कैसे योगी जी कह सकते हैं कि ना के बराबर है। बट जावेद अंसारी, टेल मी, it's not just about the chief minister saying there's a shortage. है ये बात तो देखिए ऐसा है कि नहीं, ना के बराबर है। अब उस बार के बराबर में, लेकिन उसको पूर्ति करने गया है, उसको अब रिपीट नहीं किया जा सकता है, because that has turned out to be completely false. But Javed Ansari, the fact is that it's not just about saying that there is no shortage. There was a veiled threat or not so veiled threat in what the chief minister is saying. He's saying rumor mongers will not be spared. And so actually there's now a fear that if you speak up and say I have an oxygen shortage, whether you're a hospital or anybody else, you could get, the book thrown at you. Well, certainly, and it started having an effect. The Citizens Care Initiative, a group of do-gooders who had got together, they were running helplines, they were providing oxygen, they've now decided to cease their operations in Uttar Pradesh. What can be more embarrassing, more shameful? They've decided to cease their operations because they are afraid, they don't want to risk the life and limbs and property of the young boys and girls who have volunteered to help. It's one thing to have an ostrich-like attitude. It's quite another to try and strong-arm the narrative in your favor. Just because the news is bad, so you decide to kill it.
You know, you and I may not focus on it, but the fact is you just drive into UP and the stark, grim reality stares you in the face. You go to the Prime Minister's constituency. Ominously for Uttar Pradesh, this dreaded pandemic has reached the hinterland. It's reached the villages. The infrastructure, health infrastructure has always been has always been poor, and now it's been simply overrun. Leave alone oxygen cylinders, there are not even life-saving drugs available. That is deeply worrying. If I can just ask you, Dr. Mehrotra, your hospital, how many patients do you have at the moment on oxygen support? Most of them are on oxygen support. We have 60 COVID patients with us. And 64. One thing I would like to say. 64? 60 patients. 60 patients on oxygen support. Yes. Right. Yeah. Okay. One thing I would like to say is these type of calamities, wherever they have occurred in the world, the existing healthcare setup have failed to respond to that. Whether it is US, whether it is UK, whether it is Europe. Yes. So we can't escape our by saying that, but still that is also a reality. No, of course. That's not in doubt. Again, as I said, it's about making unrealistic claims. I'm just going to play, if it's possible, a clip of when our reporter, again, this is just gives you a sense of the problem, that you're not acknowledging the problem. Our reporter was trying to interview patients outside the hospital in Meerut and they were telling him the horror stories, and then someone from the administration tried to interrupt. Let's watch. लोग परेशान हैं, अपनों के लिए सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें, ये आप खुद लेकर के मेरी लेबर है ये मेरी लेबर है मैम। आप भी मैं भी खुद इंतजाम करके आई हैं आप? जी नहीं, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अच्छा। मैंने किसी से सिलेंडर नहीं मंगवाया है। अच्छा। खुद अपनी गाड़ी में लोग डाल करके बाहर बैठे हुए, उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है। ये मेरी लेबर है और मेरी लेबर अपने हिसाब से लेके जा रही है। पीछे मेरा प्लांट चल रहा है जहाँ मेरे 8 सिलेंडर लगते हैं। ठीक है। सरकार को बदनाम मत करिए, सरकार जितना सपोर्ट कर सकती है उतना कर रही है सर। ठीक है। सरकार के पास आसमान से कोई चीज नहीं टपक रही है जो सरकार दे देगी। जितना इस समय स्थिति भयावह है उस हिसाब से सरकार जो काम कर रही है, प्लीज ऐसा काम मत करिए। आप निष्पक्ष होकर अपनी न्यूज को करिए। लोग कभी किसी को तारीफ नहीं करते। सपा सरकार होगी उसकी बुराई करेंगे, कांग्रेस होगी उसकी बुराई करेंगे, बीजेपी होगी उसकी बुराई करेंगे। दुनिया को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता, ना अमेरिका कर सकता है ना रशिया कर सकता है। कल आपके पेशेंट्स नहीं मरे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से? नहीं मरे सर, मुझे पता है ये बोल रहे हैं 10 आदमी हमारे सामने गए, ऑक्सीजन है नहीं। सुनिए, ऑक्सीजन कैसे नहीं मरे? आपके बोनसर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। सुनिए, आपके बोनसर ने हमको पीटा। कहाँ लेकर जाए? लेके कहाँ जाए पेशेंट को? सर मेरा अपना भाई नहीं पेशेंट को कहाँ लेकर जाए? लेकिन ऑक्सीजन की कमी से अनाउंसमेंट हो गया यहाँ पे कि भाई अपने पेशेंट ले जाओ, हमारे पास गैस है नहीं। बैठा मैं यहाँ पे था, इनसे पूछे कहाँ लेकर जाए? लेकर कहाँ जाए बताओ हमको? ऑक्सीजन मिल रही है ना, इसका लेकर हम गंगानगर से ऑक्सीजन लेकर आए। गंगानगर से ऑक्सीजन मैं लेकर आऊँ। गंगानगर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आपके कोई मरीज? मेरा खुदा भाई है, मेरा सगा भाई है यहाँ पे। ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे। Okay, so there you have a glimpse of what is going on, the ground reality in Uttar Pradesh, where you have the administrator saying nobody is dying here because of oxygen, but we just had the hospital chief telling our colleague that people are dying because of oxygen shortage. You can see the public there arguing with the lady saying people are dying and we've brought oxygen ourselves. Just the last word, Bharala ji, अब तो आप मानेंगे कि जो योगी जी ने कहा वो सही नहीं था, उसको अलग तरीके से उन्हें कहना चाहिए था। एटलीस्ट अब तो मानिए कि जितनी बुरी हालत उत्तर प्रदेश है उधर बाकी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत ही खराब है। जो कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण से जो कालाबाजारी का जो जमाखोरों ने किया है उस पर अंकुश लग रहा है, तो इसी प्रकार से वो पूरी उपलब्धता अब आ रही है। वो सबको ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो रही है और जीवन रक्षक दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं। अब ठीक से उसका मॉनिटरिंग शुरू हुआ है। हाँ, हो गई है, शुरू हो गई है ठीक से। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। सरकार की कहीं आज की कहानी में दिख रहा है कि लोग मरे हैं और आप कह रहे हैं उपलब्ध हो रही है। इससे ज्यादा अब जिसे कहते हैं कि क्या कहा जाए। बट एनीवे, चलिए वक्त खत्म हो चुका है और आप सब एवरीवन joined us. Thank you very much indeed. We will come back to the story. That's all the time we have on Reality Check.
Thanks for watching. Good night.